آج ویو 360 میں معاشرے کو خراب عورت کر رہی ہے، معاشرے کو درست مرد کر رہے ہیں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ کیا پاکستانی ڈرامہ پاکستانی عورت کی صحیح عکاسی کر رہا ہے؟ بھارتی ڈرامے میں عورت کو پیش کرنے کا انداز وقت کے ساتھ کتنا بدلا ہے؟ اور سالانہ 1.5 کروڑ ٹن کچرا پیدا کرنے والا نیو یارک سٹی بننا چاہتا ہے زیرو ویسٹ سٹی۔ ٹی وی ڈرامہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ صرف تفریح مہیا نہیں کرتا، دیکھنے والوں کے رویے بھی متاثر کرتا ہے۔ تو پاکستانی ڈرامے عورت کے بارے میں ناظرین کو کیا حقیقت دکھا رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ پاکستانی ٹی وی ڈرامہ خواتین کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ڈرامے آج کی پاکستانی عورت کی عکاسی بہت ہی محدود انداز میں کر رہے ہیں۔ اسکرین پہ عورت عموماً یا تو پس رہی ہوتی ہے یا پھر پیس رہی ہوتی ہے، اور مرد کے برے رویے کے لیے بھی اکثر ذمہ دار عورت کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے بنانے والے صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ عورت کے کردار اور مقام کے بارے میں کیسی رائے پختہ کی جا رہی ہے؟ آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ناظرین اسکرین پر نظر آنے والی عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھنے سننے میں بڑے انٹیلیجنٹ بزنس مین لگتے ہیں آپ، لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر کیسرا امین دن بھر کلینک کر کے شام کے فارغ اوقات اکثر ٹی وی اسکرین کے سامنے گزارتی ہیں۔ موجودہ دور میں انہیں 30 دہائی قبل بننے والے ڈراموں کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے، جب وہ تاریخی کرداروں اور مضبوط اعصاب کی مالک خواتین کی کہانیوں پر مبنی ڈرامے دیکھتی تھیں۔ کافی نیگیٹیوٹی شو کی جا رہی ہے ٹورڈز ویمن، کیریکٹر جو ہیں ان کے ہوم بریکر دکھایا جا رہا ہے، اور ایک ٹرائر دکھائی جا رہی ہے کہ جی ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، یا میاں بیوی ہیں، تھرڈ آتی ہے گھر ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے۔ اوپر رشیدہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ پیچھے لڑا رہی تھی۔ بعض افراد کے خیال میں یہ ڈرامے انہیں دیکھنے والی خواتین پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے، جو وہ فیشن دیکھتی ہیں ڈراماز میں وہ اڈاپٹ کرنے کی کچھ کوشش کرتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے مائنڈ پہ اتنا امپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات اس طرح سے ایکٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ غیرت مند ہو تو ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر میں ہڈا کود کے اس میں دفن کر۔ کئی موضوعات اور کرداروں کی متنازع عکاسی کے باوجود بہت سے پاکستانی ڈرامے ان دنوں عوام میں خاصے مقبول ہوئے ہیں۔ پاکستانی ڈرامز بہت اچھے بن رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوتے ہیں اس میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ڈراموں کو ایز اے ڈرامہ لینا چاہیے، اس کو آپ کوئی کیریکٹر نہیں ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو فکس کر لینا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو دکھائے جا رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے، ان میں سے رولز چوز کریں، غلط اور صحیح کو پہچانیں، کون غلط کر رہا ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے، اس کو غلط ہی دکھانا تھا انہوں نے، وہ ڈرامہ ہے، ڈرامے تک رہنے دیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈرامے دیکھنے کے بعد بیشتر ناظرین سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں اور ان سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں۔ پاکستان کمیشن برائے حقوق خواتین کی سابقہ چیئرپرسن پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے ان ڈراموں میں خواتین کے کرداروں کو خاصا آڑے ہاتھوں لیا۔ ایجنڈا کیا ہے کہ معاشرے کو خراب عورت کر رہی ہے اور معاشرے کو درست مرد کر رہے ہیں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صرف برائی کیے جائے اور ایک صرف اچھائی کیے جائے۔ کہیں کوئی بڑی بیمار ذہنیت ہے جس کے اندر یہ نشہ پھیل گیا ہے کہ طاقت صرف ایک صنف کا حصہ ہے۔ اچھا نا بول، ایک دفعہ میرے لیے بول۔ ڈراموں میں خواتین کے منفی دقیانوسی کرداروں پر تنقید کرنے والوں کی رائے میں سماجی بہتری کی خاطر خواتین کے مثبت کرداروں کی عکاسی کی زیادہ ضرورت ہے، تاہم ان کرداروں کے خالق اکثر انہیں صرف ایک فرضی کردار کے طور پر لینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ خواتین کو غیر حقیقی یا محدود کرداروں میں پیش کرنے سے دیکھنے والوں پر کیسا اثر پڑتا ہے اور کیا یہ رجحان بدلا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے محترمہ عارفہ سیدہ زہرا سے۔ آپ نے آج کی رپورٹ میں ان کی مختصر گفتگو سنی، لیکن اسی موضوع پہ مزید ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ سیدہ عارفہ صاحبہ، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ آپ نے جس طرح اس رپورٹ میں بھی کہا کہ ایک ایجنڈا بنتا جا رہا ہے یہ کہ عورت خرابی کی وجہ ہے اور مرد معاشرے کو درست کرتا ہے، تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایجنڈا کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، کون بنا رہا ہے آپ کے خیال میں اسے؟
देखिए, ये हम हमेशा कोई आसान सा हल ढूंढते हैं। एजेंडा कोई एक नहीं बनाता, पूरा माशरा बनाता है और उसमें माशरे में लोग शरीक होते हैं। और सबसे आसान बात यह है कि एक सस्ती सी जज्बातियत पैदा करके लोगों के दिलों को नरम या सख्त करने की कोशिश की जाए। औरत उतनी ही इंसान है जितना मर्द इंसान है, और जितना उसका हिस्सा है जिंदगी में उतना ही मर्द का भी हिस्सा है, और दोनों को बराबर का होना चाहिए। आजकल के ड्रामे औरतों की तजलील के या औरतों के किरदार की कमजोरी के या एक ऐसी शख्सियत के कि जिसका न कोई इरादा है, न जिसकी कोई अक्ल है, न जिसकी कोई पहचान है, न जिसका कोई इंतखाब है। और हमारे यहाँ एक चीज़ जो रेटिंग कहलाती है, अगर एक ड्रामे में एक औरत को एक थप्पड़ लगता है तो कम रेटिंग होती है, 3 लगते हैं तो बहुत अच्छी मिलती है। ये तजलील इंसानियत से औरत की कौन सी बेहतरी ढूंढी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आरिफा साहब, ये बताइएगा कि आज भी हमने इस स्टोरी में भी देखा, जब भी लोगों से हम बात करते हैं, हम खुद भी जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, पुराने ड्रामों को बहुत याद करते हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले ऐसे ड्रामे बनते थे। वक्त बदला, ज़्यादा तालीम का मेयार बढ़ा, ख़वातीन घरों से बाहर निकली, टेक्नोलॉजी आगे आई, माशरा तो आगे बढ़ा है, लेकिन माशरे की जो सोच जिसकी ड्रामे में अक्कासी हमें नज़र आ रही है, वो क्यों आपके ख्याल में आगे नहीं बढ़ी? चलिए, खुशी की बात यह है कि आप कहती हैं माशरा आगे बढ़ा है, मेरी समझ में नहीं आती कि वो कहाँ आगे बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर आगे बढ़ा होता तो औरतें 4 कदम न सही 1 कदम तो आगे बढ़ी होती। आपने वही रिवायती, वही तनकीदें, वही पैमाने आज तक रखे हैं, सिवाय इसके कि अब ड्रामे के मनाजिर खूबसूरत होने लगे, स्टेज अच्छे होते हैं, लिबास नए होते हैं, तो लोग उनके ये चाहते हैं कि वैसा ही लिबास वो भी पहने। जिंदगी के मानी सिर्फ जाहिर से नहीं होते, आप अंदर की जो एक मजबूती है हम सब की, उसको क्यों नहीं सामने लाने की कोशिश करते। मैं मुसलसल ये पूछ रही हूँ कि ये एजेंडा क्या है कि औरत को इस कदर पसपा करके, कमजोर करके दिखाया जाए। और मेरी समझ में यह आता है कि ये ताकत और इख्तियार का खेल है, जिसकी ताकत, जिसका इख्तियार जिस पर चल जाए। और अफसोस ये होता है कि बहुत से ऐसे ड्रामों की तो मुसन्निफा जो हैं वो ख़वातीन हैं। वो ये जिंदगी की तस्वीरें कहाँ से ला रही हैं? यानी ज़माना आगे बढ़ गया लेकिन माशरा आगे नहीं बढ़ा। ये इस बारे में थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि जो लोग कहते हैं कि ड्रामे को ड्रामे की तरह देखना चाहिए, ये किरदार हैं, ये एंटरटेनमेंट है, इसको इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब लोग ड्रामा देखते हैं तो क्या वाकई अपने आप को उससे सेपरेट करते हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं कर सकते। अगर खुद को अलग करेंगे तो फिर देखेंगे नहीं। मैंने मान लिया कि ड्रामा ड्रामा है और जिंदगी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी से अच्छा ड्रामा कोई नहीं है। इसकी जो ऊंच नीच है, इसमें जो जिम्मेदारियां हैं, इसके जो उतार चढ़ाव हैं, वो ड्रामे में भी हो सकते। आप कुछ मुबालगा कर लीजिए ना कहानी को पुरलुत्फ बनाने के लिए, लेकिन सिवाय गलत बात दिखाने के और सिवाय मुबालगे के, तो फिर तो आप जिंदगी पर भी और देखने वालों पर भी दोनों पे जुल्म कर रहे हैं। ऑलराइट, सैयदा आरिफा ज़हरा हमारे साथ थी, एक दानिश्वर और मुअल्लिमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हमने बात की। अब पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे इन दिनों भारतीय चैनल्स की नशरियात तो बंद हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें ख़वातीन को उमूमन मासूम या फिर बहुत ही साजिशी बना के पेश किया जा रहा है। भारत में केबल टीवी आए वैसे तो 25 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भारतीय केबल टीवी के जो सीरियल्स हैं उनकी औरत भी और ज़्यादा रिवायती होती गई। तो दिल्ली से आज रितुल जोशी ने यह जानने की कोशिश की है कि जब ख़वातीन को ड्रामों में अपना आप नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर भी स्क्रीन पर कुछ बदल क्यों नहीं रहा। टेलीविजन भारत के तकरीबन 20 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी देखने वालों में 52% लोग GEC यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल्स और सीरियल्स में तो खूब इजाफा हुआ है, लेकिन हिंदी सीरियल्स की औरतों के किरदार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे।
आज भी सीरियल्स की औरतें या तो साजिशें और ज्यादतियां कर रही हैं या फिर खुद साजिशों और ज्यादतियों का शिकार हो रही हैं। इतनी ज्यादा अच्छाई बता देंगे कि मतलब पूरे परिवार को लेके चल रही है, वो सबकी सुन रही है, सबकी वो कर रही है आज के जमाने में। और गलत बताएंगे तो इतनी ज्यादा गलत बता देंगे, मतलब वो महिलाई सब करने वाली है। घर के रिश्ते बहुत अच्छे दिखाते हैं और कहीं फिर नंद का बहू सास का रिश्ता गलत कर देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। नीलम पांडे हिंदी सीरियल्स की डायलॉग राइटर हैं, जवां हैं और सोच भी नए जमाने की रखती हैं, लेकिन इस सोच को जब वो किसी सीरियल में उतारना चाहती हैं तो अपने हाथ बंधे पाती हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स, जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं उनके लिए भी ब्रीफ होता है। आपका किरदार जो है वो उतना ही भटक सकता है जितनी उन्होंने एक मापदंड तय करके रखा हुआ है। वो कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती जो सो कॉल्ड एथिकली गलत हो। टीवी अब छोटे शहरों, गांवों और कस्बों के साथ साथ निचले तबकों तक पहुंच रहा है। मकबूलियत का पैमाना, टीआरपी जानने के लिए इन इलाकों से भी अब रेटिंग्स जमा की जा रही हैं। उनके लिए ऐसी औरतें नई तरह की औरतें हैं बिल्कुल, तो उनको भी उनको जानने में, उनको पहचानने में, उनको रोज रोज देखने में मजा आ रहा है। जो सोते समय भी आंख पे पूरा आईलाइनर लगा के और होठों पे लिपस्टिक लगा के और झमाझम नेट की साड़ी पहन के सोती हैं, उठते ही साथ ऐसे लगता है कि बस शादी में जाने वाली हूँ। फॉर्मूले से बदलकर आगे बढ़ने के लिए अभी इस वक्त रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सीरियल्स इतने पैसे बना नहीं रहे हैं। आधी ऑडियंस भाग रही है डिजिटल मीडियम की तरफ। नौजवान और पढ़ी लिखी औरतों का एक बड़ा हिस्सा अब टीवी सीरियल से उकता चुका है और नई कहानियां तलाश कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि मतलब कैसा हो सकता है कि जैसे भी कुछ भी कोई अनहोनी होने वाली है तो जैसे दिया बुझ जाता है, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेब सीरीज और फिल्म की दुनिया में जो औरतें हम देख रहे हैं बहुत बदल गई हैं, बहुत रियल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम में से ही कोई अपनी कहानी कह रहा हो बड़े पर्दे पे, तो हमें लग रहा है कि ये हमारी कहानी है, तो हम उनसे जुड़ते चले गए। वेब सीरीज ने भले ही तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन इन्हें देखने के लिए इंटरनेट की सहूलियत अभी भी टीवी के मुकाबले बहुत कम लोगों के पास है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। और अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जिस पर तनकीद की जाती है कि वो खवातीन को कम अहम किरदारों में दिखा रहा है। लेकिन अब पहली बार अमरीकी सिनेमाज में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसका मरकजी किरदार है एक गुलाम औरत। फिल्म हैरियट कहानी है हैरियट टबमैन की, जिन्होंने कई सौ गुलामों को आज़ादी की जानिब भागने में मदद दी। अमेरिका में गुलामी की तारीख पर वैसे तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन कभी किसी खातून गुलाम की नज़र से कहानी नहीं बयान की गई। लेकिन इस फिल्म पर भी तनकीद की जा रही है, क्योंकि इसमें हैरियट का किरदार एक अफ्रीकी अमरीकी। 3 साल बाद 2016 में फिल्म मेकर नेट पार्कर ने एक फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन बनाई। मीटू के जमाने में हैरियट पहली फिल्म है जो एक खातून के किरदार पर मबनी है। फिल्म में सिंथिया अरीवो ने हैरियट का किरदार अदा किया है। आप हैरियट को एक औरत के तौर पर देखते हैं, सिर्फ सुपर हीरो के तौर पर नहीं। जिस तरह के हालात से वो निपटती है और एक इंसान और एक औरत होने के नाते उस पर जो गुजरती है, तो इसलिए भी उसका सुपर हीरो होना अहम है। फिल्म पर मुस्बत तबसरे किए गए हैं, जिस तरह हैरियट के किरदार को एक नौजवान पुरजोश औरत के तौर पर दिखाया गया है। God was watching, but my feet was my own, running, bleeding, climbing. ट्विटर पर नॉट माई हैरियट के हैशटैग से नाइजीरियन नजाद ब्रिटिश एक्टर एरिवो के अफ्रीकी अमरीकी किरदार के लिए कास्ट किए जाने पर तनकीद की गई। फिल्म में ख्याली किरदारों जैसे एक सयाफाम जो हैरियट की मदद करता है पर भी नुक्ताचीनी की गई है। जॉर्ज मेडिसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड क्रेग कहते हैं कि फिल्म में एक सफेद फार्म निजात दहिंदा का फॉर्मूला शायद फिल्म बीनों को पसंद नहीं आया। It's just part of the developing nature of telling these stories, especially sensitive stories. ये इसलिए है कि हम अमेरिका की वो हसास तारीखी कहानियां सुना रहे हैं जिस पर हमें फख्र नहीं। तो जब हम गुलामों के बयानिए और नुक्ता नजर के बारे में बात करते हैं तो इसमें मजीद काम करने की गुंजाइश है कि ये कहानी कैसे सुनाई जाए। लेकिन तनकीद के बावजूद हैरियट ने पहले हफ्ते में ही $12 मिलियन का बिजनेस किया है। पेनेलोपी पोलू के साथ सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदारों में अपना आप तलाश करते हैं और उनकी नज़र से दुनिया को समझते भी हैं। इसलिए मीडिया की ताकत को समझने वाले कहते हैं कि टीवी स्क्रीन पर वो सब चेहरे और किरदार नजर आने चाहिए जो हकीकी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो जब आम जिंदगी में घर के अंदर और बाहर खवातीन कई तरह के किरदार निभा रही हैं, मुश्किलात से निमट रही हैं, कामयाबियां हासिल कर रही हैं,
तो फिर ये सब भी स्क्रीन पे अपनी तमाम तर बारीकियों के साथ नजर आना चाहिए, ताकि माशरे का हर तबका सिर्फ इन किरदारों में खुद को देख ही ना सके बल्कि हकीकी दुनिया में एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ भी सके। आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें और बहुत से दिलचस्प फेसबुक लाइव इंटरव्यूज भी मिलेंगे। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकी अवाम नवंबर और दिसंबर के महीनों में 25% ज़्यादा कचरा फेंकते हैं मामूल से, जिसकी वजह यह है कि ये त्योहारों के महीने हैं जब थैंक्सगिविंग, क्रिसमस और न्यू ईयर भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में अब कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनके तहत चीज़ें ज़ाया करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि न्यूयॉर्क सालाना 1.5 करोड़ टन से ज़ीरो वेस्ट की तरफ बढ़ सके। न्यूयॉर्क शहर के थिएटर्स में आजकल एक गैर मामूली किस्म की परफॉर्मेंस जारी है। शहर के मरकजी इलाके के थिएटर्स से प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और कपड़ों के डिजाइनर्स मिलकर इस्तेमाल शुदा सजावट का सामान और कॉस्ट्यूम्स एक मकसद के तहत इकट्ठे कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने बच्चों और अपने खानदान और दोस्तों के ऐसे कपड़े लेकर आ रहा है जो वो अब इस्तेमाल नहीं करते। हम सब अपनी चीजों का तबादला करते हैं और यूं लोगों को नई अशिया मिल जाती है। इस ट्रॉली में मौजूद तमाम चीजें हैरी पॉटर और द कर्स्ड चाइल्ड नामी थिएटर ड्रामे से सीधी यहाँ आई हैं। हैरी पॉटर का सामान? हाँ, मेरा ख्याल है कुछ सामान था, लेकिन वो तो हाथों हाथ चला गया। ड्रामा कंपनी 1-on-1 प्रोडक्शंस यूं तो एक म्यूजिकल ड्रामा प्रीटी वुमन की तैयारियों में मसरूफ है, मगर फिर भी उन्होंने अशिया के लेन देन के इस अमल में हिस्सा लेने का फैसला किया है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस जो कुछ हो रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम मिलकर इस बात को यकीनी बनाएं कि ज्यादा चीजें अतिया की जाएं और रिसाइकिल भी की जाएं। सालाना करीबन 14 मिलियन या 1 करोड़ 40 लाख टन कचरा पैदा करने वाले न्यूयॉर्क शहर में अब कूड़े की सफाई की खातिर कूड़े की छांटी और रिसाइकलिंग एक बड़ी तरजीह बन चुकी है। न्यूयॉर्क में कुछ अफराद हुकाम की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जीरो वेस्ट प्रोग्राम में भी शामिल हो रहे हैं। प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को एक ऐसे लाइफस्टाइल के लिए तैयार किया जाए जिसमें बड़े पैमाने पर चीजें ज़ाया करने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोग्राम में हुकाम ने माहौलियाती और नफ्सियाती माहिरीन को भी शामिल किया है। छोटी छोटी चीजों से इस अमल को शुरू किया जा सकता है। सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल छोड़कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बोतल लें। फिर अपना कॉफी कप तब्दील करें। टिश्यू वगैरह ऐसे हों जो खुराक इस्तेमाल की जाए। गोश्त कम खाया जाए। न्यूयॉर्क में इस प्रोग्राम का मकसद साल 2030 तक शहर को कचरे से पाक करना है, लेकिन इस सिलसिले में अभी भी ये बड़ा शहर तवक्को के मुताबिक नतीजा पेश नहीं कर पाया। सिर्फ 17% कचरा रिसाइकल होता है। ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और हालिया कुछ सालों में इसमें कमी भी वाक़ई हुई है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की सयाह तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, मुझे मेरा कोट नहीं चाहिए। क्या मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ सकती हूँ? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और ये कोट मेरे पास अब बहुत अरसे से है। अब वहाँ गर्मियाँ हैं और हम तो वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में हर कोई अब इस अमल में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है ताकि न्यूयॉर्क को मुस्तकबिल में कचरे से पाक किया जाए। नीना विश्वाना के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कबाड़ में से कीमती शय निकालना भी एक हुनर है, एक बहुत ही मुनाफा बख्श हुनर, और रियलिटी टीवी के दौर में कुछ लोगों के लिए शोहरत का जरिया भी। जंग शैड एम्पायर अमेरिका में एक ऐसा ही टीवी शो है जिसमें कबाड़ खाना चलाने वाले एक बाप और बेटे की जिंदगी दिखाई जाती है। आइए आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कबाड़िए से स्टार कैसे बना जाता है। 5000 मुरबा मीटर पर फैला हुआ ये कबाड़ खाना तबाहशुदा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और कश्तियों से भरा हुआ है। एक आम देखने वाले के लिए शायद ये कोई अफसरदा मंजर हो, लेकिन एंडी कोहन के लिए ये एक खजाने की हैसियत रखता है। एक कबाड़ खाना होने का मतलब है कि आपके पास हर चीज का कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद होता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी कबाड़ जमा किया है, तो मुझे मुख्तलिफ अशिया अच्छी लगती हैं, जैसा कि काम आ सकने वाली किसी ऐसी चीज की मुरम्मत करना जिसे फेंकना नहीं चाहिए।
اس کباڑخانے میں ہر ہفتے تقریباً 200 پرانی گاڑیاں آتی ہیں. ان میں سے کچھ اسپیئر پارٹس بیچنے کے کام آتی ہیں, کچھ مرمت ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ مرمت کے قابل نہیں ہوتی. اینڈی کے والد بابی نے 50 سال پہلے یہ کاروبار شروع کیا تھا اور ابھی بھی وہ ہر صبح یہاں موجود ہوتے ہیں. یہ کاروبار مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت مزہ ہے. حالانکہ اب یہ کام بہت زیادہ مقابلے کی وجہ سے کافی مشکل ہو گیا ہے اور خاص طور پر انٹرنیٹ آنے سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کا کام ہے. باپ اور بیٹے کے کام کا انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. ہم ایک لندن کیب لے کر آئے جو کہ پھینک دی گئی تھی. یہ میرے والد کا پروجیکٹ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کریں. انہوں نے اس پروجیکٹ پر جو بھی میں نے کہا اس کا الٹ کیا. میرے خیال سے انہوں نے ایسا مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا. انہوں نے اس کار پر بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور آخر میں وہ چلی بھی نہیں. اس غیر معمولی خاندانی کاروبار نے ایک ٹی وی اسٹیشن کو متاثر کیا اور یوں کوہن خاندان کے جنک یارڈ ایمپائر کو ڈسکوری چینل کے ایک ذیلی نیٹ ورک پر پیش کیا گیا. In my world, there's no idea too crazy. My empire. There's hundreds of junkyards throughout the United States. امریکہ میں اس طرح کے سینکڑوں کباڑ خانے ہیں, لیکن ہماری انفرادیت اس کا خاندانی بزنس ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگوں کو اچھا لگتا ہے. شاید وہ اس میں ایک تعلق محسوس کرتے ہیں. جو گاڑیاں کوہن کے کباڑ خانے میں پہنچتی ہیں ان کو ایک بار پھر زندگی جینے کا موقع ملتا ہے. And this was a salvage car. ہمارے پاس ایک رولز رائس ہے جو کہ جنک یارڈ کے شو میں بھی دکھائی گئی تھی. یہ ایک تباہ شدہ کار تھی جو اینڈی نے خریدی اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ چلتی حالت میں بحال کیا. اینڈی کوہن نے اس منفرد کار کو خود بحال کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کچھ زیادہ چلا نہیں پاتے کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ ایک خوبصورت کار ہے, اس کے انجن کی آواز بہرا کر دینے والی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ ہمسائے اس آواز کو برداشت نہیں کر پائیں گے. میکسم ماسکل وولف کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آج کے شو میں ہم نے بات کی کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کیا خواتین کو درست طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہے ویورز کے سامنے. ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنی رائے دیجیے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.